Ignited Minds Tutorials recently released an informative video titled Cell, the Fundamental Unit of Life for Class 9 CBSE Science Biology. This video is a comprehensive explanation of the topic, providing valuable knowledge for students. In this video, the concept of the cell as the basic unit of life is explored. The video covers various aspects of a cell, including its structure, functions, and importance. Students will learn about the different types of cells, such as animal and plant cells, and their unique characteristics. The video delves into the intricate details of cell organelles, highlighting their specific functions within the cell. Topics like the nucleus, mitochondria, ribosomes, and cell membrane are covered, giving students an in-depth understanding of cellular processes. Furthermore, the video emphasizes the significance of cells in maintaining life processes. It discusses the role of cells in growth, reproduction, and performing vital functions in our bodies. Students will gather valuable insights into how cells contribute to the overall functioning of living organisms. Overall, the video by Ignited Minds Tutorials serves as a knowledge-packed resource for Class 9 CBSE Science students. Its engaging and informative content provides a clear understanding of the topic. Cell, the fundamental unit of life and its relevance in the study of biology. Okay, बच्चा पार्टी, so we were doing what? Cells. समझ में आ रही है? Cells कर रहे थे अपन. Okay. एक मिनट. Okay, osmosis is not the only method for exchange of material. तो osmosis कौन बता सकता है क्या है? कल हमने पढ़ा था. Through a semi-permeable membrane. ठीक है? The flow of water molecules from a region of their higher concentration to a lower concentration, ठीक है, through a semi-permeable membrane is known as osmosis. ठीक है? ओके, सो हमने दो मेथड्स देखे एक्सचेंज के. क्या क्या थे? एक था आपका डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन, और दूसरा था क्या आपका ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है? डिफ्यूजन में आपका हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन है इसमें भी, ठीक है, लेकिन इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, यहाँ पे भी आपका फ्लो हो रहा है हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे semi-permeable membrane is required. That is the difference between diffusion and osmosis. In diffusion, you do not require a semi-permeable membrane. In osmosis, you will require a semi-permeable membrane. ठीक है? So ये आपका exchange है. Osmosis is not the only method for exchange of materials in and out of the cell without spending energy. ठीक है? So और कौन से? There are many more processes called as, the first one is diffusion. तो diffusion जो है थोड़ा सा अलग है osmosis से. ठीक है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ऑस्मोसिस? बिकॉज टेकिंग ऑन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इनटू द बॉडी एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द बॉडी. तो हमारा लंग्स देखो कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है. व्हाट इज इट टेकिंग इन? इट इज टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड इट इज गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ये होता है आपके डिफ्यूजन से. ठीक है, मतलब सेल्स में कल आपने देखा जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो ये बाहर जाएगा. ठीक है, और सेल्स में जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन अंदर आएगा. ये प्रोसेस जो बाहर और अंदर जाने का है, दिस इज नोन एज डिफ्यूजन. ठीक है, दिस इज नॉट ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं, यहाँ पे कोई सॉल्वेंट और सॉल्यूट नहीं है. ठीक है, यहाँ पे आपके गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है. तो प्राइमरली जहाँ पे भी आपके गैसेस का एक्सचेंज होता है, वेन एवर वी हैव एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इट हैपेंस प्राइमरली बाई डिफ्यूजन. ठीक है, अदरवाइज आपका ऑस्मोसिस होगा. ठीक है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन to a region of their lower concentration through a semi-permeable membrane is known as osmosis. ठीक है, so giving out carbon dioxide outside the body. Okay, so taking in of oxygen from the air into the body and giving out carbon dioxide outside the body. Then how is osmosis different from diffusion? तो osmosis और diffusion में difference क्या क्या है बच्चा? इस पे एक क्वेश्चन बनता ही है आपका, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए. डिफ्यूजन और
ऑस्मोसिस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इट अकर्स इन एनी मीडियम, ये किसी भी मीडियम में अकर होगा, ठीक है। व्हाट? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में मतलब आपका इट अकर्स इन एनी मीडियम, मतलब क्या हो गया? द मीडियम कुड बी लिक्विड, द मीडियम कुड बी सॉलिड एंड द मीडियम कुड बी गैस एज वेल, ठीक है। तो जैसे मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे देखो ये मिटाने जाऊंगा तो पूरा पूरा ठीक से नहीं मिटेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें सॉलिड सॉलिड डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। आपके घर में अगर कोई पुराना बक्सा है, देखो लोहे का बक्सा है, वो ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। लेट्स से एक कोई लोहे का बक्सा है, ठीक है, और ये ऐसे रखा हुआ है, और इसके ऊपर आपने कोई और बक्सा रख दिया है ऐसे बॉक्स, ठीक है। जब आप इसको हटाओगे तो आपको यहाँ पे ना मार्क्स दिखेंगे इस पहले वाले बॉक्स के। ये तभी होगा जब आपने बहुत देर तक इसको रखा होगा, मतलब 1 साल 6 महीना ऐसा, ठीक है। आपने आज रखा और कल निकालोगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि सॉलिड सॉलिड डिफ्यूजन जो है बहुत टाइम लगता है। तो इसके पार्टिकल्स इसमें डिफ्यूज हुए रहेंगे, बट इट वुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। सो सॉलिड सॉलिड डिफ्यूजन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। देन वी हैव सॉलिड लिक्विड डिफ्यूजन। सॉलिड लिक्विड डिफ्यूजन का एग्जांपल क्या है? आपने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया, फट से घुल जाएगा, है ना। फिर आपने भाई साहब शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया, फट से घुल जाएगा। ये सॉलिड लिक्विड डिफ्यूजन के हो गए, ठीक है। और फिर गैस गैस डिफ्यूजन, जैसे मैंने यहाँ पे अगरबत्ती जलाई तो इसकी जो महक है वो पूरे रूम में फैल जाएगी। सो दैट इज नोन एज गैस गैस डिफ्यूजन, ठीक है। यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे इट रिक्वायर्स ऑस्मोसिस जो है तो सिर्फ लिक्विड मीडियम में ही हो सकता है। डिफ्यूजन तीनों भी मीडियम में हो सकता है, सॉलिड लिक्विड और गैस, ठीक है। ऑस्मोसिस कैन हैपन ओनली इन अ लिक्विड मीडियम। द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स कैन बी क्या क्या हो सकते हैं? सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैसेज हो सकते हैं। सो ये डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स हो गए। द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स कुड ईदर बी सॉलिड, दे कैन ईदर बी लिक्विड और दे कैन ईदर बी गैसेज एज वेल, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही मूव होंगे ऑस्मोसिस में, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव नहीं होंगे, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, किसमें? डिफ्यूजन में। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड इन ऑस्मोसिस। सो दीज आर द 4 डिफरेंसेस दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। डिफ्यूजन कैन हैपन ऑन ऑल द मीडियम्स, ठीक है। तो आपका एक हो गया मीडियम रिलेटेड डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब ये हो गया मीडियम रिलेटेड डिफरेंस। तो डिफ्यूजन कैन हैपन इन ऑल 3 मीडियम्स, दैट इज लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, ठीक है। ओके, द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे अपन बात करेंगे भाई साहब मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूल रिलेटेड डिफरेंस हो गया। तो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। यहाँ पे डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा आपका मेम्ब्रेन का, ठीक है, मेम्ब्रेन रिलेटेड डिफरेंस। तो मेम्ब्रेन में एक में होगा भाई साहब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन ऑस्मोसिस, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में 3 डिफरेंसेस हैं, और इन तीनों डिफरेंसेस को हम अगर ऐसे कैटेगराइज करें कि पहला डिफरेंस हो गया रिलेटेड टू मीडियम। सो डिफ्यूजन कैन हैपन इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस मीडियम, ऑस्मोसिस कैन हैपन ओनली इन लिक्विड मीडियम, ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा हो गया मॉलिक्यूलर मूवमेंट का। तो डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में भी होता है, ठीक है। द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स कुड ईदर बी सॉलिड, द मॉलिक्यूल्स कुड ईदर बी लिक्विड और द मॉलिक्यूल्स कुड ईदर बी गैसेस। यहाँ पे जो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। आर वी क्लियर टू द? हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो डस्ट अगर आपका वॉल में क्या होता है, डस्ट जमा होता रहता है, तो बहुत दिनों तक अगर डस्ट जमा होता रहेगा तो वॉल में डस्ट वो जल्दी जाएगा नहीं, बहुत ज़ोर से आपको डस्टिंग करनी पड़ेगी, शायद वॉशिंग भी करना पड़े तब जाकर वो जाएगा, ठीक है। अगर आपके कपड़े हैं, देखो कपड़े वो बहुत दिनों से गंदे पड़े हुए हैं तो आपको साबुन बहुत ज़ोर से घिसना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तब जाकर वो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत दिनों से जितना दिन, तो देखो सॉलिड और सॉलिड का डिफ्यूजन बहुत लेट होता है, धीरे धीरे होता है, इसीलिए इसमें टाइम लगता है, ठीक है, क्लियर। सो यस, दैट इज अ राइट एग्जांपल। एनीथिंग दैट कंफ्यूजेस यू आउट हियर, एनीथिंग दैट कम्स अक्रॉस एज अ डाउट? नो? ओके, एक मिनट, जस्ट वन मोमेंट पीपल। बट नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं,
ये वाला करना जो दिया हुआ है, पूरा हो गया है, फिर भी बेटर रहेगा। एनसीईआरटी के सवाल निकाल, बुक क्यों नहीं लाया तू? ओके, सो ये हो गया आपका डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन also enables the cell to engulf in food and other materials from its external environment। तो हमने देखा, हम यहाँ पे ये जो डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं या ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं, ये किस बिना पे पढ़ रहे हैं? हम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पढ़ रहे हैं, ठीक है? उसको जाने बोला है, तुमको नहीं। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस हो रहा है, ठीक है? ये आपका क्या है भाई साहब? प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर और बाहर आपका डिफ्यूजन हो, ऑस्मोसिस हो रहा है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो एनेबल्स द सेल्स टू engulf in food and other materials from its external environment। तो जैसे देखो यहाँ पे अमोइबा होता है, अमोइबा का कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता है, इसका जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिक मूवमेंट, ठीक है? अभी समझ लो यहाँ पे फूड है, तो ये क्या करेगा? ये धीरे 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 भाई साहब क्या करेगा? अपने शेप को ऐसे कर लेगा, इस फूड को चारों तरफ से घेर लेगा, पट से अंदर ले लेगा, ठीक है? सो ड्यू टू स्यूडोपोडिक मूवमेंट द अमोइबा मूव्स, द सेल ऑफ द अमोइबा engulfs फूड फ्रॉम द सराउंडिंग। सो इट बेसिकली engulfs फूड फ्रॉम द सराउंडिंग, स्यूडोपोडिक मूवमेंट बोलेंगे हम इसको, ठीक है? तो यहाँ पर देखो ये अमोइबा है, ये अपना शेप और साइज कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है और इसके एनवायरनमेंट में जो भी फूड आएगा फट से अंदर ले लेगा, उसको घेर लेगा और उसको अंदर ले लेगा, ठीक है? So what is it going to do? It is going to surround it and it is going to take it inside. The cell of the amoeba engulfs food from the surrounding. It is going to engulf food from the surrounding. This process is known as endocytosis. ठीक है? इस process को अपन क्या बोलेंगे? Endocytosis. ठीक है? This process is known as endocytosis. The process of endocytosis is what? Process of engulfing. Process of engulfing food from outside. Process of engulfing food from outside is known as endocytosis. Clear है? Are we clear on this one people? ठीक है? So inside the cell, this process requires energy. इस process के लिए energy की requirement है. The cell throws out waste and other secretions. तो cell के जो भी waste होंगे वो बाहर जाएंगे. The cell throws out waste and other secretions. ठीक है? यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसका वेस्ट हो गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस, ठीक है? फूड को अंदर लेना दैट इज नोन एज एंडोसाइटोसिस और वेस्ट को बाहर फेंकना दैट इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। द प्रोसेस ऑफ एनगल्फिंग फूड इनसाइड इज नोन एज एंडोसाइटोसिस एंड द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग फूड और वेस्टेज आउटसाइड इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है? द सेल थ्रोज आउट वेस्ट एंड अदर सिक्रीशन, जो भी सेल के वेस्ट होंगे उसको बाहर फेंकने का प्रोसेस है क्या? एक्सोसाइटोसिस, ठीक है? दैट इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। ओके, दिस प्रोसेस ऑल्सो रिक्वायर्स एनर्जी, ठीक है? इसमें भी भाई साहब आपका एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। ओके ओके ओके, ओके, तो अभी तक हमने बात किया किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या सेल मेम्ब्रेन का। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन बच्चा पार्टी दोनों में प्रेजेंट होगा। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, और लेट्स से वी कॉल इट एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस विल बी प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एज वेल एज प्लांट सेल। ये दोनों में प्रेजेंट होगा, ठीक है? बट आपका सेल वॉल जो होगा दैट विल बी प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही होगा। सेल वॉल विल बी प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है? क्लियर है? ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट, सेल वॉल। अभी आप आएंगे भाई साहब सेल वॉल पे। दिस इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही मिलता है, ठीक है? इट इज अ रिजिड आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। तो ये एक रिजिड आउटर कवरिंग है, मोटा सा आउटर कवरिंग है, ठीक है? रिजिड आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, ठीक है? एक रिजिड आउटर कवरिंग है एंड इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है। देखो ये आपका सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है
और इसके बाहर ये आपका सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। एक रिजिड ठोस, रिजिड मतलब क्या है भाई साहब, आपका ठोस, ठीक है, एकदम सख्त, ठीक है। इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड होता है और जनरली ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। जरा पैर अंदर कर लीजिए, ठीक है। इट इज ओनली फाउंड इन, दिस इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स, सेल वॉल इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स, ठीक है। ओके, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। किससे बना हुआ होता है ये, दिस इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सो सेल वॉल इज प्राइमरली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। ओके, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज है क्या, इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ओके, सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, तो सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से बना हुआ है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस है और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, ठीक है। इट इज नॉन लिविंग एंड फ्रीली परमिएबल, तो ये आपका नॉन लिविंग है, ठीक है। तो सेल वॉल भाई साहब आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इट इज नॉन लिविंग एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ये भाई साहब बना हुआ है सेल्यूलोज से, ठीक है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट, ठीक है बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है ये। तो ये आपका भाई साहब आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन है, नॉन लिविंग है और ये किससे बना हुआ होता है, सेल्यूलोज से, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इट इज नॉन लिविंग एंड फ्रीली परमिएबल, फ्रीली परमिएबल मतलब क्या है, इसमें आराम से चीजें अंदर जा सकती है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं है। समीक्षा इसको बंद कर दूं क्या, नहीं ये हाँ, ठीक है। जैसे आपका सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होता है क्योंकि वो लिविंग है, ये भाई साहब नॉन लिविंग है। तो जैसे आपका देखो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग, ठीक है, ये दीवार है उसकी और लेट्स से यहाँ पे वॉचमैन है, ठीक है, ये वॉचमैन है, इस दीवार को लांग कर कोई आ सकता है ना, भले ये दीवार है लेकिन इसको भाई साहब कोई ढाक के आ सकता है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका सेल वॉल, दिस इज बेसिकली सेल वॉल, लेकिन इसके सामने से अगर ये जगा हुआ रहेगा तो वो जाने नहीं देगा, ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन आपका सिलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है, लेकिन सेल वॉल आपका परमिएबल है, सिर्फ मतलब ये फ्रीली परमिएबल है, इट इज नॉट सिलेक्टिवली परमिएबल, इट विल अलाउ एनीवन टू गो इनसाइड, इट विल अलाउ एनीवन टू गो आउटसाइड। क्या ये समझ में आ रहा है, सेल वॉल आपका फ्रीली परमिएबल है और आपका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। क्या ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, सेल वॉल नॉन लिविंग है, सेल मेम्ब्रेन लिविंग है, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन है ये भाई साहब लिविंग है, दिस इज बेसिकली लिविंग एंड इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, ये चूज करेगा किसको अंदर जाने देना है और ये चूज ये भी करेगा कि किसको बाहर अलाउ करना है, ठीक है। आपका यहाँ पे जो सेल वॉल है जो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है, इट इज फ्रीली परमिएबल, ये भाई साहब फ्रीली परमिएबल होता है। तो पहले सेल वॉल रहता है प्लांट सेल में, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो ये फ्रीली परमिएबल है, इट विल अलाउ थिंग्स टू गो इन एंड आउटसाइड एंड इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। It is present outside the cell membrane. It is made up of cellulose. Cellulose is a complex substance and provides structural strength to the plants. ये structural strength provide करता है. It is freely living and permeable. ठीक है? Okay. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Allows all substances to enter and leave the cell freely. तो सारे substances को allow करता है to enter and leave the cell freely. ठीक है? Okay. Functions of cell wall gives protection to the cell. पहला का function क्या हो गया? Cell wall gives protection to the cell, gives definite shape to the cell, ठीक है। इसको अच्छा खासा शेप देता है, प्रॉपर शेपिंग देता है ये सेल वॉल, ठीक है। देखो आपका सेल वॉल का जो है, जो शेप आपका सेल वॉल का रहेगा वही सेल का शेप हो जाएगा, ठीक है। gives definite shape to the cell. What else बच्चा पार्टी? We have seen that when a cell is placed in a hypotonic solution, जब आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, इट अब्सॉर्ब्स वाटर एंड स्वेल्स ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो आपने अगर सेल को रखा है किसमें, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, दिस इज बेसिकली व्हाट, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, वाटर अंदर जाएगा, द वाटर विल गो इनसाइड, ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दैट व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, it absorbs water and swells due to osmosis. So water will flow from a region of its higher concentration to a region of its lower concentration and it will swell up. ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, ठीक है, ये हमने देखा है भाई साहब, ठीक है, वी हैव सीन दिस, ओके। तो आपका देखो ये सेल है और इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें वाटर अंदर जा रहा है,
ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग, द वाटर इज गोइंग इन, और ये क्या हो जा रहा है, ऐसे फूल जा रहा है वैसे, ठीक है, इट इज बिकमिंग व्हाट, इसको क्या हो जाता है, ये टर्जिड, ठीक है, हाँ नहीं, इसको टर्जिड बोलेंगे, स्वेलिंग नहीं, इट स्वेल्स एंड बिकम्स टर्जिड, टर्जिड मतलब ये ठोस हो जाता है, ठीक है, इट बिकम्स टर्जिड, तो इतना पूरा पानी भर जाता है सेल के अंदर, ठीक है, द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, ठीक है, तो बिल्डिंग अप प्रेशर, अभी यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा भाई साहब, ये सारे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं ये भाई साहब फंस जाएंगे, है ना, they will be building up pressure against it, so there are chances a cell might burst because of the pressure, तो यहाँ पे चांसेस क्या है कि सेल बर्स्ट आउट हो सकता है, और इसीलिए सेल वॉल उसको प्रोटेक्ट करता है कि बर्स्ट आउट ना हो, ठीक है, डजंट गेट बर्स्ट आउट, ठीक है, ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट द सेल वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वोलन सेल, तो सेल वॉल क्या, ये इन लोग प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और सेल वॉल भी अपना एक प्रेशर इस पे एक्सर्ट करेगा, इक्वल प्रेशर, ठीक है, ताकि वो दोनों प्रेशर एक दूसरे के साथ बैलेंस हो सके, ठीक है, तो सेल वॉल विल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर, तो ये प्रेशर इक्वली बैलेंस हो जाता है जिसके वजह से सेल भाई साहब बर्स्ट आउट नहीं होता है, तो सेल डजंट गेट बर्स्ट आउट, ठीक है, क्लियर है, ओके, तो आपका पहला हमने क्या पढ़ा था भाई साहब, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद हमने पढ़ा अपना सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चा पार्टी दोनों में भी प्रेजेंट होता है, तो इफ यू सी आपका जो सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, अगर हम इनमें भाई साहब डिफरेंसेस देखें तो क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, दिस इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, दिस इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, सेल वॉल क्या हो जाएगा बोलो, प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल्स, ये सिर्फ और सिर्फ भाई साहब किस में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल्स, ठीक है, क्लियर है, ओके, और क्या हो जाएगा बोलो, सेल वॉल में इट इज नॉन लिविंग इन नेचर, ये आपका हो गया नॉन लिविंग इन नेचर, ये क्या हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन, ये आपका हो जाएगा लिविंग इन नेचर, दैट इज लिविंग इन नेचर, दिस इज नॉन लिविंग इन नेचर, और ये हो गया आपका लिविंग इन नेचर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके, सेल वॉल किससे बना होता है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से बना होता है, ठीक है, ओके, और क्या है भाई साहब आपका, ये आपका है क्या, दिस, अच्छा, परमिटिविटी अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका फ्रीली परमिएबल, दिस इज फ्रीली परमिएबल, एंड दिस इज सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, ये भाई साहब आपका सिलेक्टिवली परमिएबल होगा, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में ये डिफरेंसेस हैं, ठीक है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, इट इज नॉन लिविंग इन नेचर, सेल्यूलोज, अभी सेल वॉल का यहाँ पे फंक्शन क्या है, ठीक है, इट बैलेंसेस द प्रेशर, इट बैलेंसेस द प्रेशर, क्योंकि भाई साहब आपके ऑस्मोसिस के वजह से क्या होगा, ऑस्मोसिस के वजह से वाटर अंदर जाएगा, और वाटर जब अंदर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, इट विल क्रिएट टर्जिडिटी हो जाएगी इसमें, टर्जिडिटी, और इस स्वेलिंगनेस से भाई साहब क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो इस प्रेशर को कौन बैलेंस करता है भाई साहब, इसका इक्वल प्रेशर बैलेंस करता है सेल वॉल का, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, व्हाट इज साइटोप्लाज्म, इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल, तो जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल, ये आपका देखो सेल है, इसके अंदर जो जेली लाइक फ्लूइड है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म, ठीक है, इट लाइज बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, तो आपका भाई साहब साइटोप्लाज्म किसके बीच में है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, इट लाइज बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, ठीक है, ओके, मेनी सेल ऑर्गेनल्स लाई इन द साइटोप्लाज्म, तो सेल ऑर्गेनल्स बहुत सारे हैं साइटोप्लाज्म में, मेनी सेल ऑर्गेनल्स आर देयर इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, ओके, तो अभी देखो ऑल द सेल्यूलर केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, जितने भी आपके सेल्यूलर केमिकल रिएक्शंस हैं वो कहाँ पे टेक प्लेस होंगे, विद इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म मतलब सारे सेल ऑर्गेनल्स के लिए क्या हो गया, घर हो गया, ठीक है, जितने भी आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं इट इज बेसिकली हाउस फॉर ऑल द सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, साइटोप्लाज्म इज अ हाउस फॉर ऑल सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, तो लिख नहीं रहा है बिल्कुल भी, जेली लाइक फ्लूइड है भाई साहब इनसाइड द सेल, एक सेल के अंदर जेली लाइक फ्लूइड है साइटोप्लाज्म, किसके बीच में है, देखो ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, और ये हो गया आपका न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में है साइटोप्लाज्म, ठीक है, आपने देखा रहेगा जब आप डायग्राम वगैरह बनाते हो तो बहुत सारे लोग जब एग्जाम के टाइम पे
ऐसे 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 करते रहते कि नहीं, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या बना रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म बना रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म में ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये आपका हो गया न्यूक्लियस। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जो चीज भरी हुई है उसको अपन क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट एज साइटोप्लाज्म। ऑमलेट देखा है आपने, ठीक है, हाफ फ्राई जिसको बोलते हैं। तो ये आपका येलो पोर्शन होता है और ये आपका व्हाइटिश पोर्शन होता है। तो आप ऐसा समझ सकते हो ये न्यूक्लियस है और ये भाई साहब आपका सेल मेम्ब्रेन है, इसके दरमियान जो होता है उसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म बेसिकली है क्या, ये घर है सारे सेल ऑर्गेनल्स के लिए, ठीक है। ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल। So cytoplasm is a jelly-like fluid inside the cell. It lies between the plasma membrane and the nucleus. तो plasma membrane और nucleus के बीच में है। Many cell organelles lie in the cytoplasm. इस cytoplasm में काफी cell organelles present है। All the cellular chemical reactions take place in the cytoplasm. तो cytoplasm is the site of all cellular chemical reactions. तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, cytoplasm is the cytoplasm is the site of all chemical reactions. सारे chemical reactions का site है cytoplasm. Site मतलब जहाँ पे तो तेरी नींद आनी चालू हो गई है, ठीक है। Cytoplasm is the site of all chemical reactions. Are we clear? Okay. It stores vital substances like क्या क्या हो गया आपके देखो, amino acids, ठीक है, it stores glucose, it stores vitamins, ठीक है। ये सारी चीजों को स्टोर करता है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन्स, इन सारी चीजों को ये स्टोर करेगा, ठीक है। इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म अदर देन ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड साइटोसोल। तो अगर मैं सिर्फ इन ऑर्गेनल्स को मत कंसिडर करें अगर, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, साइटोसोल, ठीक है। सो द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म अदर देन ऑर्गेनल्स इज नोन एज साइटोसोल, ठीक है। क्लियर है? ऑर्गेनल अगर ऑर्गेनल्स को अपन माइनस कर दें, ठीक है, अभी साइटोप्लाज्म में क्या है, जैसे समझो आपका एक फ्लैट है देखो, ठीक है। इस फ्लैट में ये लिविंग रूम हो गया, ठीक है, ये भाई साहब लेट से बाथरूम हो गया, ये लेट से भाई साहब आपका किचन हो गया, ऐसा है। अगर इन सारे बाउंड्रीज को अपन तोड़ दें तो ये जो बनता है इसको अपन बोलेंगे साइटोसोल। तो ऐसा ही है यहाँ पे भी देखो, एक साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, इन ऑर्गेनल्स को अगर हम हटा दें तो जो बचता है उसको अपन क्या बोलेंगे, साइटोसोल, ठीक है। So the part of cytoplasm other than organelles is known as cytosol, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स, अभी हम सेल ऑर्गेनल्स पे आएंगे। तो जो आपके सेल के अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चा बाटी, उनको अपन बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो आपके सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या हो जाएंगे, एन ऑर्गेनल इज अ स्पेशलाइज्ड सब यूनिट विद अ सेल दैट हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो ऑर्गेनल होता क्या है बोलो, एक स्पेशलाइज्ड सब यूनिट है। ऑर्गेनल इज अ स्पेशलाइज्ड सब यूनिट within a cell which has a specific function। तो एक सेल के अंदर वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। ओके, एग्जांपल मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल। तो सेल के अंदर न्यू मटेरियल बनाना, क्लियरिंग अप वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एक्सेट्रा। तो बहुत सारे चीजें हैं। तो नया मटेरियल कुछ ऑर्गेनल्स बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको साफ करना, ये सारा कार्यक्रम जो है साथ ही साथ चलता रहता है। अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स। तो एक सेल जो है अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म इन ऑर्गेनल्स के वजह से करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? सेल के अंदर ये सारे अभी देखो समझो, अगर कोई खाली फ्लैट है, उसमें ना तो किचन में कोई जा रहा है, ना तो कोई रहता ही नहीं है वहां पे, तो वो किसी काम का नहीं ना। जब वहां पे लोग रहने लगे, जब वहां पे भाई साहब खाना वाना पकने लगे, जब वहां पे लोग भाई साहब एक फैमिली के साथ रहने लगे, टीवी भी देख रहे हैं भाई साहब, तो सारा फंक्शंस हो रहा है ना। बाथरूम यूज हो रहा है, किचन यूज हो रहा है, लिविंग रूम यूज हो रहा है, ठीक है, आपका बेडरूम यूज हो रहा है सोने के लिए, ठीक है। सो ये सारी चीजें यूज हो रही हैं। लेकिन अगर कुछ भी ना यूज हो तो इसकी तरह, इसीलिए अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म। एक सेल लिव और परफॉर्म तभी करेगा सारे फंक्शंस जब उसके ऑर्गेनल्स सब हों, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स। क्लियर है? ओके, all the cells have the same organelles no matter what their function is or what organism they are found in। so सारे cells के भाई साहब सेम organelles होते हैं। अरे क्या, ठीक है, all the cells have same organelles, सारे cells के same organelles होते हैं, ठीक है। all cells have same organelles no matter what their function is, उनका चाहे कोई भी function हो, and whatever organism they are found in, किसी भी organism भी वो found हो, ठीक है। all cells have the same organelles। let us see some of them one by one। तो let's see them one by one।
एक मिनट